چین کے صدر شی جن پنگ نے سی پیک کو دونوں ممالک کے درمیان خوشگوار تعلقات میں مزید مضبوطی اور اعتماد کا موجب قرار دیا۔ پاکستان اور چین نہ صرف اچھے بھائی ہیں بلکہ بہترین پارٹنرز بھی ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی 2 روزہ دورہ چین مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ چینی ہم منصب سے اہم امور پر تبادلہ خیال، پاک چین اسٹریٹجک مذاکرات میں شرکت، سی پیک کے منصوبوں پر تفصیلی بات چیت۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے جنگل میں آسمانی بجلی گرنے سے 24 مقامات پر آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں 175 مکانات تباہ اور 1,40,000 افراد بے گھر ہو گئے۔ اب تک آگ لگنے سے 6 افراد ہلاک اور 2 لاپتہ ہو گئے۔ اسلام آباد میں محرم الحرام کی مجالس کی سیکیورٹی کے حوالے سے خصوصی ٹریفک پلان ترتیب دے دیا۔ 653 جوان اور افسران ڈیوٹی پر مامور ہوں گے۔ پارکنگ کے غیر معمولی انتظامات کیے جائیں گے۔ محرم الحرام کے دوران تمام ایس پی، ڈی ایس پیز، بیس انسپیکٹر سمیت 653 افسران اور جوان ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ راولپنڈی پولیس نے محرم الحرام کے حوالے سے سیکیورٹی پلان جاری کر دیا۔ شہر بھر میں محرم الحرام کے حوالے سے 3 کیٹیگریز کے 316 جلوس، 1761 مجالس منعقد کی جائیں گی، جبکہ سیکیورٹی پر 6000 سے زائد پولیس اہلکار تعینات کیا جائے گا۔ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا اور آئی جی خیبر پختونخوا نے کوہاٹ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے محرم الحرام کے سلسلے میں اٹھائے گئے اقدامات کا جائزہ لیا اور اہل سنت و اہل تشیع کے گرینڈ جرگہ سے بھی ملاقات کی۔ محرم الحرام کے دوران ہزاروں بھر میں مجالس اور جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے 6000 سے زائد اہلکاروں کو تعینات کر دیا گیا، جن میں ایلیٹ فورس، بام ڈسپوزیبل اسکواڈ، لیڈیز پولیس، سی ٹی ڈی، اسپیشل برانچ کے اہلکار ڈیوٹی سر انجام دیں گے، جبکہ ڈرون کیمروں کے ذریعے کڑی نگرانی کی جائے گی۔ کراچی میں گزشتہ روز ہونے والی موسلا دھار بارش نے تباہی مچا دی۔ کراچی کے مختلف علاقے زیر آب آ گئے۔ کئی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ، جبکہ بجلی گرنے سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ موٹر سائیکل سوار 2 افراد سڑک پر گڑھے میں گر گئے، جن کو لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بچایا۔ پی ٹی آئی کراچی کے مرکزی رہنما اور پارلیمانی لیڈر حلیم عادل شیخ نے کہا کہ کراچی کی سڑکوں پر سندھ حکومت کا کوئی نمائندہ نظر نہیں آیا۔ جب ہم رپورٹر اور فوج کے نمائندے ان علاقوں تک پہنچ سکتے ہیں جہاں نقصانات ہوئے تو سندھ حکمران کیوں نہیں پہنچے؟ قومی ایئر لائن پی آئی اے نے کرایوں میں کمی کا اعلان کر دیا، جس کا اطلاق آج سے کر دیا گیا۔ کراچی سے اسلام آباد اور لاہور جانے والی پروازوں کے کرایوں میں کمی کی گئی۔ اسلام آباد اور لاہور کا یک طرفہ کرایہ 8,879 مقرر کیا گیا۔ حکومت نے 98% عازمین حج کو رقم واپس کر دی۔ درخواست گزار بینکوں سے اپنے واجبات 31 اگست تک وصول کر لیں۔ وزارت مذہبی امور میں حج واجبات کی ادائیگی سے متعلق اجلاس میں حج واجبات کی ادائیگی کے لیے نامزد بینکوں کی کارکردگی کا جائزہ بھی لیا گیا۔ بھارت کی جانب سے آبی جارحیت دریائے چناب میں 3 لاکھ کیوسک پانی کا ریلا چھوڑ دیا۔ دریائے چناب میں اونچے درجے کا سیلاب،
انتظامیہ نے الرٹ جاری کر دیا۔ منڈی بہاؤدین جھنگ میں دریائے چناب کے کنارے آباد شہریوں کو الرٹ کر دیا گیا۔ پاکستان کا دہشت گردی کے خلاف بڑا اقدام۔ داعش، القاعدہ، طالبان اور دیگر تنظیموں کے 88 سے زائد دہشت گرد عناصر پر سخت پابندیاں عائد کر دیں۔ القاعدہ، داعش اور طالبان سے متعلق 2 نوٹیفیکیشن جاری۔ کالعدم تنظیموں کے دہشت گرد عناصر کے تمام اثاثے فی الفور منجمد کرنے کا۔ اور پاکستان اور انگلینڈ کے مابین ساؤتھ میپٹن میں کھیلے جانے والے تیسرے ٹیسٹ میچ کے پہلے روز کے اختتام پر انگلینڈ کی ٹیم نے 4 کھلاڑیوں کے نقصان پر 332 رنز بنائے۔ انگلینڈ کی چوتھی وکٹ 127 رنز پر گری، تاہم اس کے بعد انگلش بیٹسمین زیک کرالی اور جوس بٹلر جم کر کھیلے اور دن کے اختتام تک ناٹ آؤٹ رہے۔ زیک کرالی 171 جبکہ جوس بٹلر 87 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ السلام علیکم، JNN نیوز اسٹوڈیو میں میں ہوں نوشین طارق۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سردار نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہر نیا سورج پاکستان میں ایک نیا مسئلہ ساتھ لیے طلوع ہوتا ہے اور دن انہی مسائل کے حل کے نظر ہو جاتا ہے۔ ہماری سیاسی روایات ہمیں اپنے دل و جان سے عزیز ہے، مگر اب کوئی الزام نہیں، کوئی بحث نہیں، کوئی بریکنگ نیوز نہیں، کیونکہ میں رکھتا ہوں سوال کا اور مانگتا ہوں جواب دلیل کے ساتھ۔
viewers of Pakistan and the rest of the world, Rich Shams are bringing you a fantabulous and most dynamic program around the globe, which is full of legends, celebrities, politicians, current affairs, entertainment, sports, and much more. So stay tuned on your favorite TV channel, CNN. जब छाँव धूप में बदलेगी, जब गरीब के घर का चूल्हा बुझेगा, जब इंसाफ एक मुश्किल पहेली बन जाए, जब तालीम और रोजगार आम आदमी के लिए नायाब हो जाएगा, तब मेरे मुल्क के हर एक कोने से एक ही आवाज आएगी, ये तो होगा। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, सरदार नदा दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाह अस्त हुसैन। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद।
पाकिस्तान में एक नया मसला साथ लिए तुलू होता है और दिन इन्हीं मसाइल के हल के नजर हो जाता है। हमारी सियासी रवायात हमें अपने दिलो जान से अजीज है, मगर अब कोई इल्जाम नहीं, कोई बहस नहीं, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, क्योंकि मैं रखता हूं सवाल का और मांगता हूं जवाब दलील के साथ। Viewers of Pakistan and the rest of the world, Ray Shams are bringing you a fantabulous and most dynamic program around the globe, which is full of legends, celebrities, politicians, current affairs, entertainment, sports, and much more. So stay tuned on your favorite TV channel, CNN. वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं कि चीन के सदर शी जिनपिंग ने सीपैक को दोनों ममालिक के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात में मजीद मजबूती और एतमाद का मौजब करार दिया है। पाकिस्तान और चीन ने न सिर्फ अच्छे भाई हैं बल्कि बेहतरीन पार्टनर्स भी हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को अपने ऑडियो पैगाम में चीन के सदर ने कहा कि पाक चीन इक्तिसादी राहदारी एक लैंडमार्क है जिससे बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के जरिए पाकिस्तान और चीन की तरक्की की नई राहें खुलेंगी और दोनों ममालिक की आवाम के दरमियान कुर्बतों में इजाफा होगा। सदर शी जिनपिंग ने सीपैक की तामीर और बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट की तकमील के लिए दोनों ममालिक के मुताल्लिका हुक्काम और अफसरान के मुश्तरका इजलास पर जोर देते हुए कहा कि प्रोजेक्ट से वाबस्ता अफराद का एक दूसरे से राब्ते में रहना बेहद जरूरी है। चीनी सदर ने ये ऑडियो पैगाम इस वक्त भेजा जब हाल ही में भारत ने बेल्ट एंड रोड के आजाद कश्मीर के इलाकों से गुजरने पर एतराज उठाया था। ताहम चीन की जानिब से भारतीय एतराज को नजरअंदाज कर दिया गया है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के जंगल में आसमानी बिजली गिरने से 24 मकामात पर आग लग गई है, जिसके नतीजे में 175 मकानात तबाह और 1,40,000 अफराद बेघर हो गए हैं। अब तक आग लगने से 6 अफराद हलाक और 2 लापता हो गए हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आतिशज़दगी से 3 रोज में 5,60,000 एकड़ पर रकबा खासतर हो गया। 12,000 फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ हैं, जिन्हें हेलीकॉप्टर्स और एयर टैंकर्स की मदद भी हासिल है। कैलिफोर्निया में आग के मुतासरीन ने भी अपने फायर ब्रिगेड बना लिए और खुद आग बुझाना शुरू कर दी। ताहम सरकारी हुकाम ने मुतनब्बा किया है कि आग खुद बुझाने से शहरियों की जानों को खतरा हो सकता है। कैलिफोर्निया रियासत में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। जनूबी सूडान में माल बरदार तैयारा जिसमें 8 अफराद सवार थे हजकोले खाते हुए जमीन बोस हो गया और जहाज में खौफनाक आग भड़क उठी। जनूबी सूडान के दारुल हुकूमत से शुमाल मगरबी रियासत बहरुल गज़ल की जानिब उड़ान भरने वाले माल बरदार कौमी तैयारे का कुछ ही देर बाद कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता हो गया था। तैयारा एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर एक मैदानी इलाके में गिरकर तबाह हो गया, जिससे जहाज में खौफनाक आग भड़क उठी और तैयारा मुकम्मल तौर पर जल का खाकस्तर हो गया। तैयारे में 8 अफराद सवार थे। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि नवाज शरीफ की सेहत को लेकर अब इनकी फैमिली को भी कोई शक नहीं रहा। वो हट्टे कट्टे हैं। तहकीकात होनी चाहिए कि नवाज शरीफ के मेडिकल टेस्ट की तैयारी में कौन कौन मुलव्विस था। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने मीडिया ट्रेनिंग वर्कशॉप की तकरीब से
خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزارت اطلاعات کی 2 سال کی کارکردگی دیکھ کر خوشی ہوئی ہے. جن 7 نکات پر کام کر کے گیا تھا ابھی تک وہی چل رہے ہیں. نواز شریف کی صحت کو لے کر اب ان کی فیملی کو بھی کوئی شک نہیں رہا اور وہ بالکل تندرست ہیں. فواد چودھری کا مزید کہنا تھا کہ نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے تمام تر آپشنز استعمال کرنے کی ہدایت کی ہے. جنہوں نے نواز شریف کے ٹیسٹ کیے ان کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے. ان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف اور بلاول مل کر بھی جلسہ کریں تو ایک میرج ہال میں بھی بندے اکٹھے نہیں کر سکتے. ان کی تحریک بس پیسے حلال کرنے کا ذریعہ ہے. وفاقی وزیر بولے تمام تر اختلاف صوبوں کے پاس ہیں. صوبوں کو اپنی کارکردگی عوام کے سامنے لانی چاہیے. صوبائی اسمبلیوں کو اپنے یوٹیوب چینلز کا آغاز کرنا چاہیے. صحافت کو بھی نئی ٹیکنالوجی کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا. وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ نواز شریف کے باہر جانے پر وزیر اعظم عمران خان پچھتا رہے ہیں. جبکہ حکومت اسحاق ڈار کو واپس نہ لا سکی اب نواز شریف کو لانا تو اور بھی مشکل کام ہے. وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کے ریلوے کی ری اسٹرکچرنگ کے حکم پر 4 ہفتوں میں مکمل عمل درآمد کریں گے. شیخ رشید کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کی اے پی سی عید کے بعد ہونی تھی لیکن اب محرم الحرام آ گیا ہے. محرم کے بعد بھی اے پی سی نہیں ہوگی اور یہ ان کے اپنے گلے پڑ جائے گی. فضل الرحمان نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے جو چاہتے ہیں وہ انہیں نہیں ملے گا. ان کی سیاست کا تو پہلے ہی خانہ خراب ہے تو وہ چاہتے ہیں کسی اور کا بھی رہے. شیخ رشید نے کہا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی عمران خان کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلا سکتے. دونوں جماعتیں این آر او کی تلاش میں ہیں. وزیر اعظم عمران خان کچھ بھی کر لیں لیکن این آر او نہیں دیں گے. وہ پہلے ہی پچھتا رہے ہیں کہ نواز شریف چلا گیا. ایک سوال کے جواب میں شیخ رشید نے کہا کہ نواز شریف اتنا بھولا نہیں ہے کہ شہباز شریف والی غلطی کرے. ان کے لیے شہباز شریف کی ایک قربانی کافی ہے. مردہ اور تھکی ہوئی اپوزیشن عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. باہر نکلے گی تو تھک جائے گی. نواز شریف کو واپس لانے کے حکومتی اقدامات سے متعلق سوال کے جواب میں شیخ رشید نے کہا کہ اسحاق ڈار اور سلمان شہباز کو نہیں لا سکے تو نواز شریف کو لانا آسان کام نہیں لیکن خواہش ہے کہ وہ واپس آ کر مقدمات کا سامنا کریں. مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ نے وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ نون کی فکر چھوڑیں. ریل حادثات میں جاں بحق ہونے والوں کے لواحقین کا سوچیں. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ مریم نواز کی نیب میں پیشی شیخ رشید اور عمران خان کی سیاست پر ٹھوکر لگ گئی ہے. تھکی ہوئی حکومت نے ملک کے ہر شعبے کو تباہ کر دیا ہے. تھکے ہوئے لوٹوں سے عوام کو ریلیف کی کوئی امید نہیں. رانا ثناء اللہ نے مزید کہا کہ اے پی سی ابھی ہوئی نہیں لیکن شیخ رشید کی ٹانگیں ابھی سے کانپ رہی ہیں. اسے پتا ہونا چاہیے کہ سلیکٹڈ وزیر اعظم کے پاس این آر او دینے کا اختیار نہیں. وہ ساری عمر این آر او لے کر سیاسی گھر بدلتا ہے. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے قانون پر عمل درآمد کا حکم دے دیا ہے. عدالت نے وفاق اور چیئرمین سی ڈی اے سے 3 ہفتے میں رپورٹ طلب کر لی. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ دیانتداری سے بتا رہا ہوں طاقتور کے لیے کوئی قانون نظر نہیں آ رہا. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر امان اللہ نے ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے حوالے سے درخواست پر سماعت کی. معاون خصوصی برائے موسمیاتی تبدیلی ملک امین اسلم اور چیئرمین سی ڈی اے عامر علی احمد عدالت میں پیش ہوئے. چیف جسٹس نے معاون خصوصی امین اسلم سے مکالمہ کرتے ہوئے عدالت کو کہا کہ آپ سے بہت سی توقعات ہیں. آپ کے اقدامات کو عدالت سپورٹ کرتی ہے. پورے کا پورا نیشنل پارک تباہ کر دیا ہے. دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آپ کے ذمے صرف اسلام آباد کا علاقہ ہے. کیا وہاں بھی قانون پر عمل نہیں ہو سکتا؟ کیا ماحولیاتی قانون چھوٹے سے علاقے پر بھی نافذ نہیں ہو سکتے؟ آنے والی نسلوں کے مستقبل کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. عدالت نے وفاق اور چیئرمین سی ڈی اے سے جواب طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت 3 ہفتوں تک کے لیے ملتوی کر دی. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ راولپنڈی پولیس نے محرم الحرام کے حوالے سے سیکیورٹی پلان جاری کر دیا ہے. شہر بھر میں محرم الحرام کے حوالے سے 3 کیٹیگریز کے 316 جلوس اور 1761 مجالس منعقد کی جائیں گی جبکہ سیکیورٹی پر 6000 سے زائد پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا جائے گا. رپورٹ کر رہے ہیں عثمان مغل.
रावलपिंडी पुलिस ने मुहर्रम उल हराम के हवाले से सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया। शहर भर में मुहर्रम उल हराम के हवाले से 3 कैटेगरीज के 316 जुलूस निकाले जाएंगे। ए कैटेगरी में 40, बी कैटेगरी में 64 और सी कैटेगरी में 212 जुलूस शामिल होंगे, जबकि 3 कैटेगरीज की 1761 मजालिस मुनक्किद की जाएंगी। ए कैटेगरी में 208, बी कैटेगरी में 347 और सी कैटेगरी में 1206 मजालिस शामिल होंगी। मुहर्रम उल हराम के हवाले से 135 मुकामात में से 5 मुकामात को हसास तरीन करार दे दिया गया। शहर भर की निगरानी ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों की मदद से की जाएगी। शहर भर में 37 उलमा इकराम के दाखिले पर पाबंदी आयद रहेगी, जबकि 11 अफराद को 4th शेड्यूल में शामिल कर दिया गया। मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले 11 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी पर 6000 पुलिस एहलकार, 4600 FC एहलकार और 1800 वॉलंटियर तैनात होंगे, जबकि 50 इंस्पेक्टर, 375 SI और 440 ASI और 510 हेड कांस्टेबल भी ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे। 7 से 10 मुहर्रम उल हराम तक मोबाइल फोन सर्विस बंद रखने के लिए पंजाब हुकूमत से दरख्वास्त भी कर दी गई। कैमरामैन नदीम तारिक के साथ मोहम्मद उस्मान मुगल, JNN न्यूज़, रावलपिंडी। गुजर खान के इलाके दरियाए खाकी में पुरानी रंजिश पर फायरिंग से 3 अफराद कत्ल, मुल्जिमान फायरिंग के बाद मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। लाशों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा उस्मान मुगल। गुजर खान के इलाके दरिया खाकी में पुरानी रंजिश पर फायरिंग से 3 अफराद कत्ल, मुल्जिमान फायरिंग के बाद मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। लाशों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। गुजर खान के इलाके दरियाला खाकी में पुरानी रंजिश पर फायरिंग से 3 अफराद का कत्ल हुआ। मुल्जिमान फायरिंग के बाद मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। लाशों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा उस्मान मुगल। जी उस्मान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये गुजर खान का ये इलाका दरिया चौकी है, जहाँ पर मामूली रंजिश के बाद जो वो फायरिंग का वाक़या पेश है और फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद जो वो जांबाक हो चुके हैं और जांबाक होने वाले जो अफराद थे उनकी शनाख्त जो है वो गजनफर, महमूद और मसूद के नाम से, जबकि मक़तूलीन की लाशें जो हैं उनको हेडक्वार्टर अस्पताल जो वो मुंतकिल कर दी गया। पुलिस का ये कहना है कि वाक़या जो वो पुरानी दुश्मनी का शाखाना जो वो बताया जा रहा है। इब्तदाई तौर पर जो तहकीकात जो वो शुरू कर दी गई है। मुल्जिमान मौके से फरार होने में कामयाब हो गए, लेकिन बाकी का मुकदमा जो वो दर्ज नहीं किया जा सका। जी बहुत शुक्रिया उस्मान, अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि कराची तरक्याती कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबरान से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात। कमेटी के इक़दामात के हवाले से वफाकी वजीर असद उमर और अली जैदी ने अरकान से तबादला ख्याल किया। PTI रहनुमा खुर्रमशेर ज़मान ने तफसीलात बताते हुए कहा कि मुलाकात में तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने शिरकत की। मीटिंग में फंडिंग के ज़राए के हवाले से गुफ्तगू हुई, जबकि फाइनल किए गए प्रोजेक्ट्स पर भी गुफ्तगू हुई। खुर्रमशेर ज़मान ने बताया कि ट्रांसपोर्ट, वाटर, सीवरेज, सॉलिड वेस्ट और शॉर्ट रेन रोड की तामीर पर काम होगा। वफाक से सेक्रेटरी PND और सूबे से भी सेक्रेटरी PNDC इस मरहले को देखेंगे। कराची की तरक्की के लिए मिलकर बेहतर काम करेंगे। PTI कराची के मरकजी रहनुमा और पार्लिमानी लीडर हलीम आदिल शेख ने कराची में गुज़िश्ता रोज होने वाली शदीद बारिशों के बाद तबाहकारियों पर जारी वीडियो बयान में कहा कि कराची की सड़कों पर सिंध हुकूमत का कोई नुमाइंदा नजर नहीं आया। जब हम रिपोर्टर और फौज के नुमाइंदे इन इलाकों तक पहुंच सकते हैं जहां नुकसानात हुए हैं, तो सिंध हुक्मरान क्यों नहीं पहुंचे। हलीम आदिल शेख ने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। गुज़िश्ता रोज 2 बजे सिंध असम्बली में सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब साहब की जानिब से अपने तमाम सूबे के मामलात को भूल कर एक इल्ज़ामनामा, एक लाहौर नामा पेश किया गया और उसके अंदर लाहौर में ये हो गया, लाहौर में ये हो गया, लाहौर में गधा डूब गया, भाई गधा डूब गया। बड़ा अफसोस था। और उसी वक्त मैंने कहा था कि 2 घंटे बाद जो प्रेडिक्शन है तो बारिश आएगी, तो उसके बाद वहाँ तो आप गधे के डूबने का अफसोस कर रहे हैं, यहाँ शहरी डूबेगी। और हमने देखा, मैं खुद गुज़िश्ता रात कोई 2:30-3 बजे तक जो कैपेसिटी थी हमारी, हम उसके अंदर रहे, लोगों की इमदाद के लिए रोडों पर रहे। कोई लैंड क्रूज़र में चढ़ कर नहीं गए, हम कोई टो ट्रक्स वगैरह भी साथ लेकर गए थे कि लोगों की मदद की जाए। कोई नज़र नहीं आया। कोई सिंध हुकूमत के अफसरान, रिपोर्टर हो सकते हैं तो अफसर क्यों नहीं हो सकते? रिपोर्टर पहुँच सकते हैं तो अफसर क्यों नहीं पहुँच सकते? आपके फौज पहुँच सकती है, पानी निकाल सकती है, मदद के लिए पहुँच सकते हैं आर्मी के लोग, तो आपके लोग क्यों नज़र नहीं आते? आपके सिर्फ बयान देने के लिए रह गए हैं।
छोटी सी बारिश में, या इसको चलें ज्यादा पानी को कह दीजिए, 7 लोग बेचारे अपनी जानों से हाथ धो बैठे। रात को लियारी नदी में तीनट्टी का एक बलोच नौजवान फुटबॉल खेलते हुए बच्चा गिर गया, डूब गया उसमें। अपनी मदद आपके तहत कोई 7-8 घंटे बाद उन्होंने खुद निकाला। कोई रेस्क्यू का कोई गोताखोर नहीं पहुंचा, कोई पूछने नहीं पहुंचा। डीसी साहब गए, एक राउंड लगा के आ गए। और यहाँ आपको बताएं कि कौमी एयरलाइन PIA ने किरायों में कमी का ऐलान कर दिया है, जिसका इतलाक आज से कर दिया गया। कराची से इस्लामाबाद और लाहौर जाने वाली परवाजों के किरायों में कमी की गई है। इस्लामाबाद और लाहौर का यकतरफा किराया 8,879 मुकर्रर किया गया है। PIA के मुताबिक इन किरायों में सिर्फ हैंड कैरी दस्ती सामान ले जाने की इजाजत होगी, जबकि सामान के साथ यकतरफा किराया 8,543 कर दिया गया है और 35 किलो सामान ले जाने की सहूलत होगी। तर्जुमान PIA का कहना है कि PIA इस्लामाबाद के लिए रोजाना 4 परवाजें ऑपरेट करती है और लाहौर के लिए रोजाना 2 परवाजें ऑपरेट कर रही है, जबकि किरायों में कमी गैर मुअय्यना मुद्दत तक रहेगी। जबकि दूसरी जानिब PIA के इस्लामाबाद से गिलगित जाने वाली 2 परवाजें गिलगित में शदीद क्रॉस विंड की वजह से वापस इस्लामाबाद पहुंच गईं। तर्जुमान PIA के मुताबिक परवाज PK 603 और 605 गिलगित एयरपोर्ट पर पहुंची तो 15 नॉटिकल माइल की क्रॉस हवाएं चल रही थीं, जिसकी वजह से जहाज का एयरपोर्ट रनवे पर उतरना नामुमकिन था। इस क्रॉस विंड में लैंडिंग बहुत मुश्किल साबित हो सकती थी। इस्लामाबाद की आज की तीसरी परवाज भी मनसूख कर दी गई, क्योंकि रास्ते में बोंजी के मकाम पर मौसम शदीद खराब था। तीनों परवाजें अब कल दोबारा शेड्यूल की जाएंगी। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा और IG खैबर पख्तूनख्वा ने कोहाट का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में उठाए गए इक़दामात का जायजा लिया और अहले सुन्नत और अहले तशरीह के ग्रैंड जिरगा से मुलाकात की। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारी नुमाइंदा उस्मान पुराचा। सूबाई चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर काज़म नियाज ने IG खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर सनाउल अब्बासी के हमरा कोहाट का दौरा किया। दौरे के मौके पर उन्हें कमिश्नर हाउस में मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में उठाए गए इक़दामात के बारे में मल्टी मीडिया ब्रीफिंग दी गई। बादशाह चीफ सेक्रेटरी काज़िम नियाज और IG सनाउल अब्बासी ने अहले सुन्नत और अहले तशरीह के जिरगा इमायदीन से मुलाकात की। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर काज़िम नियाज ने जिरगा इमायदीन से खिताब के दौरान कहा कि मुहर्रमुल हराम के पुरअमन इनेकाद के लिए इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का फरोग हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ, लिहाजा कोरोना से रोकथाम के लिए जारी SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। कोरोना कम हुआ, खत्म नहीं हुआ, तो ये मुहर्रमुल हराम इस हवाले से भी इंतहाई अहम है कि हमने इसमें थोड़ी बहुत एहतियाती तदाबीर जरूर करनी है। इस मौके पर होम सेक्रेटरी इकरामुल्लाह खान, कोहाट, हंगू, कुर्रम और औरंगज़ई की जिली इंतजामिया और अस्करी हुकाम ने भी शिरकत की। उस्मान पराचा, JNN न्यूज़, कोहाट। मुहर्रमुल हराम के दौरान हजारा भर में मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए 6000 से ज्यादा एहलकारों को तैनात कर दिया गया है, जिनमें एलीट फोर्स, बॉम्ब डिस्पोजेबल स्क्वाड, लेडीज पुलिस, CTDA, स्पेशल ब्रांच के एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे, जबकि ड्रोन कैमरों के जरिए कड़ी निगरानी की जाएगी। RPO हजारा ने तीनों अजला के मुहर्रमुल हराम के सिक्योरिटी प्लान को तसल्ली बख्श करार दिया। DPOs को हिदायत देते हुए कहा कि मुहर्रमुल हराम में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए खुसूसी इक़दामात उठाए जाएं। DPOs और सर्कुलर STPOs इमाम बारगाहों और मजालिस और जुलूसों के रूट्स और शहर की बड़ी मसाजिद की सिक्योरिटी का जायजा खुद ले। इमाम बारगाहों के इर्द गिर्द के इलाकों में सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन किए जाएं, जबकि होटल, सराय और हॉस्टल्स की रोजमर्रा की बुनियाद पर मुताल्लिका थाना चेकिंग करके आला अफसरान को रिपोर्ट पेश करे। मशकूक अफराद, अफगान मुहाजिरीन और शेड्यूल 4 में शामिल अफराद की नकलो हरकत पर कड़ी नजर रखी जाएगी। रुख करेंगे जोही का, जहां काछू में 2 फरीकैन में झगड़े के दौरान गोली लगने से एक शख्स मंजूर शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक मुल्जिमान ने मामूली तलखलामी पर गोलियां चला दी। पुलिस अभी तक मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं कर सकी, जबकि वर्सा ने पुलिस के खिलाफ शदीद एहतजाज किया है। मुजाहिरीन ने शदीद एहतजाज करते हुए बताया कि पुलिस थाना के करीब मुल्जिमान ने गोलियां मारकर शदीद जख्मी कर दिया। मुल्जिमान की जानिब से पुलिस को मुबैना भारी रिश्वत भी दी गई है, जिसकी वजह से पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। पुलिस मुकदमा दर्ज करने के बजाय टाल मटोल कर रही है। मुजाहिरीन ने आला हुकाम और SSP दादू से नोटिस लेने का मुतालबा किया है।
اور یہاں آپ کو بتائیں کہ لیا ڈی پی او آفس میں روزانہ کی بنیاد پر کھلی کچہری کا سلسلہ جاری ہے۔ سائلین کے مسائل کے فوری ازالے کے لیے متعلقہ افسران کو ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ کھلی کچہری کے انعقاد کا مقصد سائلین کی براہ راست سماعت اور عوام الناس اور پولیس افسران کے مابین فاصلے ختم کرنا ہے۔ مزید جانتے ہیں وقار ایمان سے۔ جی وقار۔ جی بالکل، اس میں موجود ہوں ڈی پی آفس لیا میں، جہاں پہ آئے روز جو ہے کھلی کچہری کا انعقاد کیا جا رہا ہے ڈی پی آفس لیا میں۔ ہمارے ساتھ ڈی پی او حسن اقبال صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے جو آئے روز جہاں پہ جو انعقاد کیا جا رہا ہے کتنے سائلین آتے ہیں آئے روز۔ جی آپ بتائیے گا سر کہ کس حوالے سے یہ انعقاد کیا گیا ہے اور آئے روز جو سائلین کی تعداد ہے وہ کتنی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حکومت پنجاب کا اور پنجاب پولیس کا یہ انیشیٹو ہے کہ افسران میں اور عوام میں بالکل بھی دوریاں نہ ہوں، تمام افسران عوام کے لیے ہمہ وقت اویلیبل ہوں، اور ان کی اگر کوئی پریشانیاں ہیں یا مسائل ہیں تفتیش کے حوالے سے، یا کسی ملازم کے خلاف شکایت ہے، یا ان کی کوئی جائز قانونی کارروائی نہیں ہو رہی، تو وہ یہاں پہ اپنا مسئلہ لے کے آ سکتے ہیں، اور اس کو روزانہ کی بنیاد پہ میں خود سنتا ہوں، اور بلا خوف و خطر وہ آ کے اپنی گزارش بھی کر دیتے ہیں اور ان کی جو ہے ہیلپ کی جاتی ہے۔ جب یہ ہم نے سلسلہ شروع کیا تو اس وقت تقریباً 15-20 لوگ آ رہے تھے، لیکن اب یہ تعداد ماشاءاللہ 50 سے 100 کے درمیان ہو گئی ہے۔ اور اس میں ایک جو اچھی بات ہے جو میں آپ کے فورم سے بتانا چاہوں گا کہ اب زیادہ تر لوگ جن کے کام ہو جاتا ہے وہ شکریہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، یعنی شکایتوں کا کوانٹم نیچے جا رہا ہے، اور جو لوگوں کو انصاف مل رہا ہے اس کے لیے وہ آتے ہیں، اور ان کا اعتماد بھی بڑھ رہا جی لیا پولیس پہ۔ جی بالکل، جیسے کہ ڈی پی صاحب بتا رہے ہیں کہ جو شکایتوں کا بیلنس ہے وہ کم ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ جو سائلین ہیں وہ کافی زیادہ اس پہ مطمئن بھی دکھائی دیتے ہیں، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ جو بر وقت جو انصاف ہے وہ فراہم کیا جا رہا ہے۔ جی، اور یہاں رخ کریں گے منڈی بہاؤدین کا، جہاں دریائے چناب میں قادر آباد کے مقام پر فلڈ وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ ریسکیو ٹیمیں ریسکیو موٹر بوٹس اور حفاظتی سامان کے ساتھ دریائے چناب پر پہنچ گئی ہیں۔ منڈی بہاؤدین میں دریائے چناب میں سیلاب کے خطرے کے پیش نظر ڈپٹی کمشنر کے عدالت کی ہدایت پر الرٹ جاری کر دیا گیا، جس کے مطابق ڈسٹرکٹ ایمرجنسی ریسکیو 1122 کی ٹیمیں فوری طور پر موٹر بوٹس اور حفاظتی سامان کے ساتھ دریائے چناب میں قادر آباد کے مقام پر پہنچ گئیں۔ پی ڈی ایم اے کی طرف سے جاری کی گئی وارننگ کے مطابق ہیڈ قادر آباد پانی کی سطح پر مسلسل تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ سیلابی ریلے کے پیش نظر قریبی دیہات کو وارننگ جاری کر دی گئی ہے اور لوگوں کو مال مویشی سمیت محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ تھرپارکر مٹھی میں سندھ ویٹرنری ڈاکٹرز کی جانب سے اغوا ہونے والے ڈاکٹر آیت اللہ جروار کی بازیابی کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ تھرپارکر ٹنڈو باغوں میں کچھ ماہ قبل اغوا ہونے والے ڈاکٹر آیت اللہ جورا کی بازیابی کے لیے مٹھی میں سندھ ویٹرنری ڈاکٹرز کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔ احتجاج میں شریک رہنماؤں کا کہنا ہے کہ کچھ ماہ قبل ٹنڈو باغوں سے ویٹرنری ڈاکٹر آیت اللہ جروار کو بلا جواز اغوا کیا گیا۔ ڈاکٹر آیت اللہ کو کوئی جرم نہیں تو اس کو کورٹ میں پیش کیا جائے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ اور اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ اغوا ہونے والے ڈاکٹر کو جلد از جلد بازیاب کروا کر ڈاکٹروں کو بھارت نے ایک بار پھر آبی جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دریائے ستلج میں پانی چھوڑ دیا ہے، جس سے پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ قصور سے نمائندہ JNN میاں کاشف اس وقت دریائے ستلج پر موجود ہیں۔ مزید اپڈیٹ انہی سے لیتے ہیں۔ جی کاشف آگاہ کریں۔ جی بالکل، میں اس وقت دریائے ستلج پر موجود ہوں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بھارت نے ایک بار پھر آبی جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دریائے ستلج میں پانی چھوڑ دیا ہے، جس سے پانی کی سطح نارمل سطح سے جو ہے وہ 8 فٹ تک جو ہے وہ بلند ہو چکی ہے، اور مزید پانی کی سطح جو ہے وہ تیزی کے ساتھ بلند ہو رہی ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر پانی کی سطح مزید بلند ہوئی تو مستقی کا علاقہ، گٹی کلنجر کا علاقہ، نگر ایمن پورہ کے جو علاقے ہیں، دیہات ہیں، ان کا زمینی رابطہ بھی منتقع ہونے کا خطرہ ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بھارت نے گزشتہ سال بھی جو ہے وہ بغیر اطلاع دیے دریائے ستلج میں آبی جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پانی چھوڑا تھا، جس سے لوگوں کی ہزاروں ایکڑ کے حساب سے جو فصلیں ہیں وہ تباہ ہو چکی تھی۔ اب بھی جو ہے پانی کی سطح مزید بلند ہوئی تو لوگوں کی جو کاشت کی ہوئی چاول کی فصل ہے وہ تباہ ہونے کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ابھی تک یہاں پر جو ہے کوئی بھی انتظامات جو ہیں وہ نہیں کیے گئے ہیں۔ اگر یہی صورتیں آ رہی تو آنے والے دنوں میں جو ہے وہ پانی کی سطح بلند ہوئی تو سیلاب کا جو خدشہ ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے۔ جی، مظفر گڑھ میں مبینہ پولیس مقابلہ، کار سوار ہلاک، ایک ملزم فرار، جس کا تعاقب جاری ہے۔ DPO اور پولیس نفری موقع پر پہنچ گئی ہے۔
मुजफ्फरगढ़ में मशकूक कार को रोकने पर पुलिस पार्टी और मुबैना मुलजिमान के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जबकि नामालूम कार सवारों और पुलिस के दरमियान फायरिंग से एक कार सवार के सर पर गोली लगने से हलाक हो गया। थाना सिविल लाइन मुजफ्फरगढ़ के करीब टिब्बी चौक के करीब नामालूम मुलजिमान की कार मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद दरख्त से जा टकराई। पुलिस के मुताबिक कार में सवार मुलजिमान को रोकने की कोशिश की गई, जिन्होंने भागने की कोशिश की और पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। कार में सवार दूसरा शख्स असलहा समेत फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी चौक पहुंच गई और इलाका कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। ओकाड़ा पुलिस ने मनशियात के होल सेल डीलरों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां करते हुए 6 किलो से जायद चर्स बरामद कर ली है। ओकाड़ा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की हिदायत की रोशनी में जिला भर में मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। मुहिम के दौरान थाना सिटी दीपालपुर और सदर रियाना ने मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से 6 किलो से जायद चर्स बरामद की गई। डीपीओ की जानिब से पुलिस टीमों को इनाम देने का ऐलान किया गया है। मुलजमान से चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पतोकी थाना सिटी की हदूद में चोरी की वारदातों का सिलसिला न रुक सका। पुलिस वारदातों पर कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है, जिस पर अवाम सरापा एहतजाज हैं। तफसीलात के मुताबिक पहली वारदात में मेगा रोड पर वाक़े इशफाक नामी शख्स के घर से नामालूम चोर 1 तोला तिलाई जेवर, 30,000 नकदी और 3 घड़ियां लेकर फरार हो गए। दूसरी वारदात में सईद नामी शख्स के घर से चोर मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। पुलिस चोरी की वारदातों को रोकने में मुकम्मल नाकाम नजर आ रही है। मुतासरीन ने दरख्वास्तें थाना सिटी में जमा करवा दी, ताहम अभी तक FIR दर्ज न हो सकी। मुतासरीन ने फौरी तौर पर DPO कसूर से नोटिस लेने की अपील की है। बिलाल कॉलोनी पतोकी में हुदैबिया ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया, जिससे सैकड़ों घरानों को साफ पानी की सहूलत मुयस्सर आ सकेगी। पतोकी शहर का ज़ेरे ज़मीन पानी खारा और मुज़र सेहत होने की वजह से पीने के काबिल नहीं, और यही वजह है कि मकामी लोगों को पीने का साफ पानी दूर दराज से लाना पड़ता है या फिर खरीदना पड़ता है। शहरियों को इस परेशानी को दूर करने के लिए हुदैबिया ट्रस्ट पतोकी के ज़ेरे एहतमाम बिलाल कॉलोनी में लाखों रुपए की लागत से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब करवा दिया गया है, जिससे सैकड़ों घरानों को पीने का साफ और मीठे पानी की सहूलत मिल सकेगी। इस ऐसे इक़दाम पर शहरियों ने ट्रस्ट की इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। और यहाँ आपको बताएं कि सफदराबाद में तेज रफ्तार मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं। हादसे में 7 अफराद जख्मी हो गए। हादसा मांगा डोगरा सफदराबाद रोड के करीब पेश आया है। मांगा डोगरा फाटक सफदराबाद रोड पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं। हादसे में 7 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 शेखुपुरा की इमदादी टीम मौके पर पहुंचकर जख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद देने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर शेखुपुरा मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शोरकोट दरबार हजरत सुल्तान बाहू की 10 रोजा उर्स की तकरीबात का सिलसिला जारी है। शोरकोट दरबार हजरत सुल्तान बाहू सूफी बुजुर्ग पाक हिंद हजरत सुल्तान उल आरिफीन की 10 रोजा उर्स की तकरीबात का सिलसिला जारी है, जिसमें मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। ज़ायरीन बसों, रिक्शों, मोटरसाइकिलों पर कसीर तादाद में उर्स में शिरकत के लिए आ रहे हैं। इस हवाले से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने अवाम से ताउन की अपील की है। इंतजामिया का कहना है कि समाजी फासला अख्तियार करके खुद को और दूसरों को कोरोना से बचाएं। उर्स में शिरकत करने के लिए ज़ायरीन वॉक थ्रू गेट से गुजरकर दाखिल होंगे। उमरकोट की तहसील कुंडरी में मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान कायम रखने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर कुंडरी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। हिफाजती और SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करने की हिदायत की गई है। तफसीलात के मुताबिक AC ऑफिस कुंडरी में मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान कायम रखने के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत असिस्टेंट कमिश्नर कुंडरी ने की। शिया उलमा काउंसिल के ज़िलई सदर अब्बास अली काज़मी समेत दीगर मुकातबे फ़िक्र के उलमा इकराम ने भी शिरकत की। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ने तमाम मुताल्लिका इदारों को मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान बेहतर रखने और मजालिस और मातमी जुलूसों के दौरान समाजी फासला और SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करने की हिदायत की हैं। उन्होंने उलमा इकराम से अपील की है कि वो मुहर्रम उल हराम के दौरान इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन इब्ने अली की हयात तैयबा वाक़या करबला को सामने रखकर बर्दाश्त सीखें और फिरका वारियत से गुरेज किया जाए। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन ने कहा है कि डिवीजन भर में महकमा प्लान प्रोटेक्शन ने 5 लाख
91 एकड़ रकबे का सर्वे किया है और किसी भी इलाके में टिड्डी दल की अफजाइश नहीं पाई गई। वो इंसदाद टिड्डी दल मुहिम के बारे में जायजा इजलास की सदारत कर रहे थे। कमिश्नर आसिफ ने कहा कि हालिया दिनों में रहीम यार खान चौलिस्तान में 20,000 एकड़ रकबे पर टिड्डी दल के खात्मे के लिए स्प्रे किया गया और ये बात बाइस इत्मीनान है कि मुताल्लिका महकमा जात के बाहमी राब्ते से टिड्डी दल की अफजाइश के खात्मे के लिए हर वक्त भरपूर कोशिश में है। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन ने कहा कि चौलिस्तान में टिड्डी दल की अफजाइश के आसार नजर नहीं आए, ताहम बॉर्डर के पार टिड्डी दल की आमद के खतरात मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि महकमा चौलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हालिया दिनों में सर्वे किया और किसी इलाके में भी टिड्डी दल की अफजाइश नहीं पाई गई। दौड़ शहर और गिरदुनवा में बारिश खूब जमकर बरसी। मौसम खुशगवार होने के बाद हवा मुकम्मल बंद हो गई। बादल और बारिशों की वजह से लोगों के सोलर सिस्टम नाकाम करना छोड़ गए और हस्बे मामूल बिजली गायब हो गई। सिंध में मानसून बारिशों का दूसरा सिलसिला दाखिल होने के बाद दौड़ में बारिश के बरसते आज दूसरा रोज है। एक तरफ बारिशों से फसलों में पानी जमा होने के बाद फसलों को नुकसान का अंदेशा, तो दूसरी जानिब शहरी इलाकों में लोगों के लगे हुए सोलर एनर्जी सिस्टम बादल और बारिशों की वजह से काम करना छोड़ गए। तीसरी तरफ वाबडा हेस्को रोड की तरफ से हस्बे मामूल बिजली बंद कर दी गई है। हवा बंद होने की वजह से शहर में शदीद हब्स हो गया। शहरियों ने वाबडा एसडीओ को शहर की बिजली की सप्लाई फौरी तौर पर बहाल करने का मुतालबा किया है। लियाकतपुर थाना बक्कालाड़ा के नवाही इलाके में नौजवान को कत्ल कर दिया गया है। नामालूम कातिल लाश नहर में फेंककर फरार हो गए। पुलिस ने 4 घंटे की जिद्दोजहद के बाद मुलजिमान को ट्रेस करके 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। लियाकतपुर के थाना बक्कालाड़ा के इलाके में गुज़िश्ता सब नामालूम कातिलों ने आहनी पाइप से तशद्दुद करते हुए नौजवान अब्दुल खालिक को कत्ल करके लाश नहर में फेंक दी और फरार हो गए। पुलिस ने कलील वक्त 4 घंटे में अंधा कत्ल ट्रेस करते हुए 2 मुलजिमान अब्दुल मजीद और मोहम्मद अमजद को भी गिरफ्तार कर लिया और मुलजिमान की निशानदही पर आला कत्ल आहनी पाइप भी बरामद कर लिया गया। मुलजिमान को शक था कि मकतूल अब्दुल खालिक इनकी बेटी के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं। इलाका भर के अवाम ने इस अंधे कत्ल के मुलजिमान को बरवक्त गिरफ्तार करने पर पुलिस अफसरान और खुसूसी टीम की कारकर्दगी को सराहा और मुबारकबाद पेश की। जहानिया के इलाके मियापुर का BHU अस्पताल मैरिज हॉल में तब्दील हो गया है। अस्पताल की इमारत में बासर जिम्मेदार के बेटे की शादी का इनेकाद किया गया है। अस्पताल ढोल ढमक्कों से गूंजता रहा, कमरे बारातियों से भर गए, जबकि शादी के दौरान अस्पताल में मरीजों का दाखिला बंद कर दिया गया है। जहानिया के इलाके मियापुर में बासर जिम्मेदार मुश्ताक अहमद ने BHU अस्पताल को शादी हॉल में तब्दील करके बेटे की शादी करवाई। शादी के दौरान अस्पताल ढोल ढमक्कों से गूंजता रहा। अस्पताल का सब्जा और कमरा बारातियों से भरे रहे। शादी के दौरान BHU अस्पताल मरीजों के लिए बंद रहा, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ओकाड़ा थाना गुगीरा की हदूद में डाकुओं और पुलिस के दरमियान क्रॉस फायरिंग के नतीजे में 1 डाकू हलाक जबकि 5 फरार हो गए। पुलिस की भारी नफरी ने मौके पर पहुंचकर नाकाबंदी करते हुए फरार डाकुओं की तलाश शुरू कर दी है। ओकाड़ा थाना गुगीरा की हदूद में क्रॉस फायरिंग का वाकया पेश आया। थाना ओकाड़ा गुगीरा की पुलिस रेड के लिए जा रही थी कि डाकुओं ने दरख्त के जरिए सड़क ब्लॉक कर रखी थी। पुलिस ने के आने पर डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस पार्टी ने भी जवाबी फायरिंग की। क्रॉस फायरिंग के दौरान एक नामालूम डाकू अपने साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गया। डाकू को बराए इलाज के मुआलजे अस्पताल शिफ्ट किया जा रहा है, जो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। हलाक होने वाले डाकू की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी। खून सफेद हो गया। जायदाद की खातिर बीवी ने बेटे के साथ मिलकर खामंद को कत्ल कर दिया। मकतूल की लाश गढ़े से बरामद कर ली गई। तफसीलात के मुताबिक थाना सदर के इलाके मोजा सलारा में चंद रोज कबल लापता होने वाले 70 साल अल्लायार को इसकी बीवी जैनब ने बेटे के साथ मिलकर जायदाद के लालच में कत्ल करके लाश घर के सहन में गड़ा खोदकर दफना दी और इसकी गुमशुदगी का ड्रामा रचाया। 4 दिन बाद इलाके में ताफुन फैलने के बाद अहले इलाका ने पुलिस को इतला दी, जिसके बाद थाना सदर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गढ़े से अल्लायार की लाश बरामद कर ली। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। पुलिस के मुताबिक मकतूल की बीवी और बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है।
तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 साल गुजरने के बावजूद वापडा सादगाबाद में सुधार नजर नहीं आया। वापडा ने घरों के ऊपर से LT की तारें गुजार दी और ट्रांसफार्मर घर के दरवाजे के साथ नस्ब कर दिया। सादगाबाद के नवाही इलाके में वापडा वालों की बेहिसी गरीब के घर के ऊपर LT की तारें गुजार दी और ट्रांसफार्मर घर के दरवाजे पर नस्ब कर दिया। गुज़िश्ता रात LT की तारें टूटकर घर में आ गिरीं, जिसके बायस पूरा घर शॉर्ट सर्किट हो गया। वापडा वाले किसी बड़े सानिए का इंतजार कर रहे हैं। SDO खलीकुज़्ज़मान को शिकायत की तो कोई सुनवाई ना हुई। अहले इलाका ने आला हुकाम और एक्सन वापडा सादगाबाद से फौरी नोटिस लेकर तारें और ट्रांसफार्मर हटाकर दूसरी तरफ मुंतकिल करने का मुतालबा किया है। कसूर हुकूमत पंजाब के SOPs पर अमल करने के अहकामात की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। मुहर्रम उल हराम का एहतराम भूलकर बाबा लाल शाह के नाम से उर्स मेले का इनेकाद किया गया, जबकि मकामी पुलिस और इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। कसूर में चूनिया के नवाही इलाके छांगा मांगा में बाबा लाल शाह के उर्स ने हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ा दिया। बाबा लाल शाह मेला में आसमानी झूले, मौत के कुएं, ख्वाजा सराओं के मुजरे, ढोल की थाप पर घोड़ों का रक्स जारी है, जिन्हें देखने पंजाब भर से हजारों ज़ायरीन का जमे गवीर उमड़ आया है। पंजाब भर में पाबंदी के बावजूद हुकूमत पंजाब के अहकामात की खुल्लम खुल्ला धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जबकि इस सिलसिले में मकामी पुलिस और इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। थाना सराय मुगल के इलाके में 3 ओबाश नौजवानों की शादीशुदा औरत से अगवा के बाद असलहे के जोर पर जिनसी ज्यादती। मुलजिमान 3 माह तक चूनिया कंगनपुर में बंद कमरे में रखकर ज्यादती करते रहे। तफसीलात के मुताबिक खातून को 3 माह कबल असले के जोर पर अगवा किया गया। अगवा की गई खातून को 3 माह मुसलसल ज्यादती का निशाना बनाते रहे। खातून अगवाकारों के चुंगल से निकलकर अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर इसने अपने खावंद को अपने साथ होने वाली ज्यादती से आगाह किया। इसके बाद वो तहरीरी दरख्वास्त और मेडिकल लेकर थाना सराय मुगल गई तो वहां के SHO ने मुकदमा दर्ज करने के बजाय खातून और इसके खावंद को गलीस गालियां दी और उनको थाने से धक्के मार कर निकाल दिया। ज्यादती का शिकार खातून और इसके खावंद जब्बार ने वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला पंजाब और DPO कसूर से इंसाफ की अपील की है। कसूर के नवाही इलाका धारीवाल में पटवारी की मिलीभगत से कब्जा माफिया ने सरकारी जमीन पर कब्जे का मामला पेश आया है। अहले दैया और AC कोर्ट राधा किशन की काविशों के बावजूद कब्जा वागुजार न करवाया जा सका। कसूर धारीवाल के पटवारी की कार्रवाई करने के एवज रिश्वत लेने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो में पटवारी अब्दुल अजीज को रिश्वत लेते हुए देखा जा सकता है। पटवारी ने गांव के अफराद के हक में रिपोर्ट बनाने के लिए रिश्वत ली। पटवारी अब्दुल अजीज के खिलाफ 2 माह कबल एंटी करप्शन को मुबैना रिश्वत की दरख्वास्त भी दी गई, मगर 2 माह गुजरने के बावजूद पटवारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। जबकि डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन का कहना है कि DC कसूर से पटवारी के खिलाफ रिपोर्ट मांगी है, जवाब पर कार्रवाई होगी। पटवारी ने 47,000 रुपए रिश्वत ली। राजनपुर की नवाही इलाका में नहर में नहाते हुए 2 नौजवान डूब गए। पुलिस चौकी मोहरे वाला के नौजवानों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर एक नौजवान को जिंदा निकाल लिया, जबकि दूसरा नौजवान जान बहक हो गया। तफसीलात के मुताबिक सखियावाला के रूहानी बुजुर्ग अलमारूफ हजरत खान के 125वें उर्स की सालाना 2 रोज़ा तकरीबात में शिरकत के लिए आने वाले 2 नौजवान नहर में नहाते हुए डूब गए, जिनको बचाने के लिए पुलिस चौकी मोहरेवाला के जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर नहर में छलांग लगाकर एक नौजवान को जिंदा जबकि दूसरे की लाश निकाल ली। डूबने वाले दोनों नौजवानों का ताल्लुक माना एमदानी से है। दोनों नौजवानों का नाम ज़ीशान है, जिनकी उम्र 16 और 17 साल है। पुलिस थाना फजलपुर ने दोनों नौजवानों को RHC फाजिलपुर मुंतकिल कर दिया है। DPO कसूर की खुसूसी हिदायत पर पुलिस की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई। मोटरसाइकिल चोर गैंग के 2 अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया है। कसूर मुलजिमान के कब्जे से लाखों रुपए मालियत की 7 मोटरसाइकिलें और असलहा बरामद किया गया। मुलजिमान गली मोहल्लों में घरों से बाहर खड़ी मोटरसाइकिलों के लॉक तोड़कर चोरी करते और इंजन और चेसर नंबर टेम्पर करके फरोख्त करते थे। मुलजिमान ने शहर कसूर और दीगर इर्द-गिर्द में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों का बाजार गर्म कर रखा था। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान की निशानदही पर मजीद गिरफ्तारियां भी होंगी और बहुत जल्द गैंग के बाकी अरकान को भी पाबंदे सलासल किया जाएगा। शराब के नशे में धुत शहजाद ने किराएदार फयाज को मामूली झगड़े पर कत्ल कर दिया। थाना सिटी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है।
تفصیلات کے مطابق پھول نگر محلہ رسولپورہ کا رہائشی فیاض شہزاد نے دکان کرائے پر لے رکھی تھی جس میں گارمنٹس کا کاروبار تھا۔ آج شب شہزاد نے فیاض کے گھر میں داخل ہو کر شراب پینا شروع کر دی۔ فیاض کے منع کرنے پر ملزم شہزاد نے تیش میں آ کر اس کو چارپائی کا پایا، سر میں دے مارا اور کینچی کے کئی وار کر کے اسے شدید زخمی کر دیا۔ مقتول زخموں کی تاب نہ لا کر موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ تھانہ سٹی پولیس نے موقع پر پہنچ کر تفتیش شروع کر دی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے JNN۔